सी प्रॉपर पता नहीं, इवन आई लेफ्ट एंड ज्वाइन फिर भी ये आई डोंट नो हाउ टू अपग्रेड. Why you are laughing? Because Papa. Because of Athar, class is going on, yaar. Hold on. Let everybody come. हाँ जी. पता नहीं, आई rejoined. I thought this is a hack to continue the meeting, but वो भी काम नहीं कर रहा है, तो कुछ दूसरा हैक ढूंढना पड़ेगा. एनीवेज, तो सोल का जो साइज होता है, दैट इज टिप ऑफ अ हेयर. इट्स ओके, लेट हिम बी. दैट इज टिप ऑफ अ हेयर का 10,000 पीसेस अगर करेंगे तो उसका एक पीस, दैट इज सोल. So how it is, it can be visible, it can't be visible. But imagine that smallest of the piece which is not even visible in the lenses or microscope, कहीं पे भी visible होने वाला नहीं है. Even that has got so much of enormous spark which can function an entire human body and keep it active and lit and functioning. So all of these activities. Now Chaitanya was also saying कि अगर heart dysfunction हो जाता है, so then the entire body dysfunctions, which is not true. अगर हार्ट आपका फंक्शन करना बंद कर देता है, स्टिल लॉट ऑफ पीपल आर ब्रेन डेड और वो वेंटिलेटर पे रहते हैं. उनको मशीन के थ्रू चीजें दी जाती हैं. दे आर फेड एंड दे आर केप्ट अलाइव. वेंटिलेटर क्या है? जस्ट इक्विपमेंट which is keeping a body alive, and soul is there but it doesn't want to function. So until the soul leaves, जब soul जाती है, then the brain stops functioning, all the parts of the body stops functioning. That is where the soul leaves. Till then it is only suffering in the body, है ना? तो म्यूट हिम. आज मेरे को अच्छी चीज पता चली कि आई कैन म्यूट पीपल. आई डिड नॉट नो दिस. हाँ जी. सो अ क्विक अपडेट अबाउट सोल क्या है. अब हम लोग जल्दी जल्दी से ये सीधे से ना ये पढ़ते हैं ट्रांसलेशन. द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल, insoluble, and can neither be burned nor dried, is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, eternal, eternally the same. हमेशा सेम रहने वाली है, eternally the same. So that's how the soul features are. अगर कभी आप लोगों को टाइम हो, अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे, तो यू कैन राइट डाउन द फीचर्स, एंड वेन एवर यू आर इन अ वेरी वेरी मिजरेबल डिस्ट्रेस या बहुत ही ऐसी सिचुएशन जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू कोप अप and your external environment is overpowering you know these are pointers which will actually make you feel lighter. और इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला था कि जब भी वो इतने बड़े नेशन की जिम्मेदारी लेते हैं, और when he feel heavy he go back every morning and take one verse of Bhagavad Gita, any page, any chapter, and he feels lighter. A lot of people say that when they sit with the book and pray that I want answer for my problem when nobody can help, they open the book. I don't know. People say that every shlok, every page is talking to them. They get their answer. हर पेज में ऐसा नहीं है कि आपकी उस कस्टमाइज सिचुएशन की आंसर मिलेंगे, बट आप रिलेट कर पाते हो. सो दीज आर ऑल एनर्जीज व्हिच ट्राई टू कनेक्ट विद यू व्हेन यू ट्राई टू कनेक्ट विद देम, दैट आई सरेंडर एंड आई सीक योर guidance. Right? So these are features of soul. Now, is reincarnation just a religious sentiment? Actually, no. ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म में होगा, क्रिश्चियन में नहीं होगा. See, these, I mean, हमारे शास्त्रांत में तो वर्णा बताए थे. वर्ण वो अकॉर्डिंग टू कर्म और अकॉर्डिंग टू अवेयरनेस. ये जो जातियां, ये कास्ट सिस्टम है, ये बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट ने अपने अपने फायदे के हिसाब से ये चीज को मैंने मैनेज किया, मैनिपुलेट किया. सो एक्चुअली इट इज नॉट रिलीजियस सेंटिमेंट, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड सोल. अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब हम किसी की डेथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे यू नो so and so person left, the person तो did not leave na, the body is still here, but something left which was operating that person, that is soul. And how do we call that person after he is dead? अरे लोग तो नाम से भी नहीं बुलाते. मतलब बॉडी के को बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि शिल्पी, दे कॉल बॉडी, राइट? तो
you see the disconnect immediately when the soul leaves. You're not considered. The person is here, but what is departed is actually soul. Person hasn't departed. So if we know the concept that every death, this is the concept, then probably we will be able to understand Bhagavad Gita more beautifully and with more surrender. ये कुछ केस स्टडीज हैं जहाँ पे रीइंकार्नेशन प्रूव हुआ है. आप अगर चाहो तो इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो एंड रीड अबाउट एक मिनट, प्रोफेसर कपाड़िया, दीप कपाड़िया. मैं इसको मैंने ना ये केस स्टडी पढ़ी थी बट मुझे यहाँ पे रीड करने नहीं आ रहा है. 1 मिनट. वाई विंडो इज क्लोज्ड. मैं ना अभी स्क्रीन फुल नहीं करूंगी बिकॉज आई नीड टू रीड द कमेंट्स यहाँ पे. या तो ये इनके बारे में क्या है. दीप कपाड़िया वॉज अ सिक्योरिटी एट उदयपुर फोर्ट म्यूजियम अपने प्रीवियस बर्थ में. और 3.5 साल की एज पे ही वॉज बॉर्न इन बोरीवली मुंबई. एंड जब उन्होंने ये बोलना शुरू किया 3.5 की एज पे, तो जनरली वहां पे मराठी बोलते थे सब लोग, बट ही स्टार्टेड टू स्पीक मारवाड़ी लैंग्वेज. एंड ही वांटेड टू गो टू उदयपुर क्योंकि उनको कुछ पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस याद थे. एंड पेरेंट्स ने काफी इलाज कराया, मेडिसिन दिए, सब कुछ किए, बट उनको कुछ हेल्प नहीं मिला. फिर पेरेंट्स ने स्टीवेंसन ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, आयन स्टीवेंसन को अप्रोच किया. ही इज डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया. मैं बताऊंगी, अभी मैंने अगली स्लाइड में कवर किया है वो. तो ही इज अप्रोच्ड कि मतलब सब कुछ ट्राई करने के बाद ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है एंड आई नीड टू अप्रोच अ सेट ऑफ डॉक्टर हु क्रिएट क्योर्स दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो उन्होंने वहां अप्रोच किया एंड डॉक्टर पेशेंटली हर्ड हिम. फिर डॉक्टर ने बोला कि वहां पे लेके जाते हैं जहाँ पे ये डायरेक्ट कर रहा है. वहां पे लेके गए और फिर वहां पे उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए. और उस पर्टिकुलर घर को या उस जगह पे जहाँ पे वो काम करते थे ना, वो कोई म्यूजियम था. वहां पे कोई केस चल रहा था बिकॉज समथिंग इज हैपेंड एंड समबडी इज हिडन सम राइफल और समथिंग देयर. तो जब उन्होंने सारे सीक्रेट्स मैग्नीफाई किए और वो राइफल बताई जहाँ पे वो हिडन थी सेकंड फ्लोर पे, तो दिस एक्चुअली हेल्प्ड इन द कोर्ट केस. और उन्होंने एक कोई दरवाजा था जो खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने वो उसका सीक्रेट भी बताया कि ये दरवाजा किसी कैरोसिन फैन के स्विच से खुलेगा. तो कैरोसिन फैन के पीछे कोई स्विच है, वो दरवाजा खुला एंड देवर मतलब दीज आर ऑल सो ब्यूटीफुल. मेरे को तो आई फील गूजबम्स व्हेन टॉकिंग दीज स्टोरीज. बट आप अगर इंटरनेट पे जाओगे एंड इफ यू विल ट्राई टू पुट दीप कपाड़िया प्रोफेसर रीइंकार्नेशन स्टोरी, यू विल गेट टू नो. सो दिस इज ऑल कवर्ड बाय मीडिया एंड प्रूवन. Now he is Dr. Ian Stevenson, जिनके पास उनके पेरेंट्स गए थे, and what he is saying, reincarnation, at least I conceive it, does not nullify what we know about evolution and genetics. It suggests, however, that there may be two streams of evolution, the biological one and the personal one, and that during terrestrial lives, these streams may interact. मतलब अब ये देखिए, आपने काफी फैंसी इंग्लिश लिख दी कि बायोलॉजिकल होता है और पर्सनल होता है, लेकिन ये इंटरैक्ट करते हैं दोनों स्ट्रीम्स. बट फैक्ट मतलब अगर इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाए तो ही इज सेइंग दैट ही स्टडीड मोर देन 3000 रीइंकार्नेशन केसेस. ही इज अ साइकियाट्रिस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया. अगेन आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो. आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना टाइम है, बट हाँ ये फैक्ट्स हैं. एंड ही पास्ड अवे ऑन 8 फरवरी 2007. इन्होंने 3000 केसेस के जो रीइंकार्नेशन की स्टडी करी है ना, ही इज नॉट रेफरिंग टू एनी बुक लाइक भगवत गीता. ही इज सेइंग दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दीस स्ट्रीम्स इंटरैक्ट. दैट मीन्स लोगों को याद रहता है और सोल का पुराना जर्नी, इस जर्नी में इस सोल के साथ में वो एक्सपीरियंस इंटरैक्ट कर रहा है. सो ही इज पुटिंग इट दैट वे. नियर डेथ एक्सपीरियंस को कार्डियोलॉजिस्ट माइकल सैबोन ने भी बहुत क्लोजली स्टडी किया है. ही सीन मेनी पीपल नियर टू डेथ. और एक और वीडियो है वेयर पीपल आर ट्राइंग, जहाँ पे ये एविडेंस आया है. आई डोंट नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं ये वीडियो प्ले करूंगी. अदरवाइज आई जस्ट पुट द फैक्ट कि एक फैमिली है जहाँ पे देयर वाज अ ग्रैंडफादर, and because of some unfulfilled wishes where he could not tell more details about where the property is, where the documents are, um, he was born as a grandkid. And later, when his father is changing his pants and changing his clothes, he's saying, "Why are you treating me like this? I used to change your, and you should listen to me." So then, again, when they went to psychiatrist and all of that, जब वो पूरा hypnotherapy करते हैं, and there is a lot of proven sciences like past life regression.
बहुत सारे लोग अपने लाइफ में सफरिंग्स का रीजन ढूंढने जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती भी है, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो ये सब करते हैं। बट अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सेम कि आपको लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। अंटिल यू विल नॉट टेक लर्निंग व्हाट द सोल हैज कम फॉर यू, वी I विल think, sorry to interrupt. या I think that is the reason why they say कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. So that is the reason. This is the logic behind it. So that you know these kinds of reincarnation वाला जो भी अभी आपने जो दो तीन cases बताए, so I think that is because of that. That is why they say कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. So या he should not get it. करेक्ट। वो एक रिवेंज वाला मूड कि ये काम खत्म करना है, इसके लिए वापस आना है, वो अगर थॉट रहेगा ना, सी अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन भगवत गीता इज, हम आजकल बहुत देख रहे हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कृष्णा सेज आई विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। फिर अगर लोग बोलते हैं कि फिर अल्कोहल क्यों बनाई, जुआ क्यों बनाया, why all the sins are here, he says I fulfill all your desires. People who want this, I'll give them this. People who want spiritual bliss, I'll give them that. People who want to read Bhagavad Gita, I'll give them resources for that also. Somebody will come and tell you, come read, I'll help you to read. Somebody will call you to mandir, somebody will tell you, participate in this ritual activity, do some donation. वो सब होता है, but at the end of the day our choices, our decisions which we take define. So आपने बिल्कुल सही बोला, आत्मा को शांति दे is like prayer कि forget all your unfinished business and enter into that peace. है ना? तो मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर रही हूँ, उसका मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया, बिकॉज इतना कुछ है ना, मैं हर बार सोचती हूँ फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी, बट उसके बैकग्राउंड में ही हम 4 हफ्ते से घूम रहे हैं। और टुडे आई ट्राई टू फिनिश इट वेरी फास्ट, बट स्टिल लुक एट इट, इट्स सच वास्ट नॉलेज। मुझे पूरे 2 साल लगे, और मैं रोज करती थी। तो 2 साल पूरा तो नहीं, मैं बोलूंगी 1.5 साल टू अंडरस्टैंड इट डेप्थ। तो हम संडे संडे करेंगे तो थोड़ा धीरे जाएगा, मैं ट्राई करूंगी जल्दी करने, बट लेट्स सी। बट द होल आइडिया इज इसको कवर नहीं करना है, इसकी नॉलेज ग्रास्प करनी है और अपनी एवरीडे लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अनदर श्लोक, व्हाट इज द टाइम? ओके, आई थिंक वी शुड बी वाइंडिंग। मैं देखती हूँ इसके आगे क्या है, बस मुझे लगता है यही कवर कर पाएंगे हम फर्स्ट चैप्टर पे आज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। So whenever there is this shloka is yatra yogeshwarah krishna krishno yatra partho dhanurdara tatra shri vijay bhutir bhuva nitir mama nitir matir mamam. So wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will always certainly be the opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. अब ये ना, हमने शुरुआत का देखा सेकंड चैप्टर में, जब बहुत सारी चीजें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अभी तक कि सोल क्या है, बॉडी क्या है, मटेरियल सोर्सेस क्या है, स्पिरिचुअल सोर्सेस क्या है। एंड नाउ डायरेक्टली जंपिंग टू 18th चैप्टर, जहाँ पे भगवत गीता पूरी क्लोज हो रही है, सारी लर्निंग्स आ चुकी हैं, एंड नाउ कृष्णा इज कंक्लूडिंग दिस टू अर्जुन। हियर ही सेज दैट जहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे मोरालिटी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी धर्म है, 1 मिनट, अर्जुन द सुप्रीम आर्चर, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेनली। हाँ, बट हमें क्या देखना है, अर्जुन और कृष्णा के फीचर्स देखना है। वेर ही सेइंग अर्जुन एंड कृष्णा, actually he is referring to the features and quality is Krishna is param brahma, all the brahmas, lord, he says. अब you agree, you don't agree, we are all defined by his material energies. एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन आनी बंद हो जाएगी तो त्राही माम he calls, right? So we are all under his material energies. अब हम agree करें या ना करें, even we don't surrender, he still provides us, because he says अब मैं सबका पालन करता हूँ। अहम बीज प्रदाता प्रता, मतलब मैं पेड़ को बीज भी देता हूँ, मैं इंसान का बीज भी देता हूँ, मतलब आई एम अ फादर, मास्टर फादर ऑफ एवरीबडी। सो ही विल नरिश ऑल ऑफ अस, बच्चे बेकार हो या अच्छे हो, एज अ पिता ही विल टेक केयर ऑफ एवरीबडी, एंड ही विल फुलफिल ऑल द डिजायर्स, फ्री विल इज गिवन टू अस। सो ही सेज दैट जो फीचर्स हैं उनके, धर्म के साथ खड़े होना, मोरालिटी, करेज एंड डिग्निटी, वो सब फीचर्स हम आगे आगे सीखेंगे। ये तो डायरेक्ट 18 चैप्टर में पहुंच गया, बट बाकी की जो जर्नी है ना जी, ये जो बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 18 चैप्टर तक, दैट टॉक्स अबाउट द फीचर्स विच कृष्ण एंड अर्जुन possess। लेकिन अगर ये फीचर्स हैं तो विक्ट्री,
is confirmed. That is my opinion, and nobody can counter his opinion. Again, O son of Kunti, non-permanent appearance of happiness and distress, and their disappearance is due course. In due course, are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, and O son of Bharat, one must learn to tolerate them without being disturbed. I think if we have to close the chapter today, we can close with this beautiful shlok that anything, like किसी चीज से हम बहुत खुश होते हैं बट वो भी बहुत टेम्परेरी होती है. सिमिलरली जब हम दुखी होते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये भी टेम्परेरी है और ये डिपेंड कर रही है हमारे सेंस ऑफ परसेप्शन से. सी ही सेज ना दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन. अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी की घड़ी टूट गई तो शायद हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो उसकी एनवी है, जेलस है, तो दूसरा बंदा खुश भी हो सकता है. सो सेम एपिसोड ऑफ घड़ी टूटना विच वाज लाइक 10,000 रुपीज, जिसकी है इज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, और जो न्यूट्रल है इज नो एक्सपीरियंस, और जो एनवी करता है, जो उससे जेलस होता है, इज अ हैप्पी एक्सपीरियंस, इज हैप्पी इन दैट सेंस परसेप्शन. तो एक ही एपिसोड आपके सेंस परसेप्शन के हिसाब से आपको दुख देता है, आपको कोई भी फीलिंग नहीं देता है, आपको खुशी देता है. So similarly, he says that any episode is one defined that it is temporary. तो आप उससे जल्दी उभरने की कोशिश करो. एंड सेकेंड, डिफाइंड बाय योर सेंस परसेप्शन, कि आप उस इवेंट को किस तरह से ले रहे हो. तो बहुत सारे केसेस में हम हमारी जो भी सफरिंग्स हैं उनको हमारे परसेप्शन को चेंज करके उसको काफी कम कर सकते हैं, या फिर उससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं. सो आई थिंक दिस सेंड्स सेशन टुडे. अब मैं चाहती नहीं कि अब 2 मिनट भी नहीं बचा, वैसे तो 45 मिनट्स का सेशन है, मैं फर्स्ट चैप्टर अभी शुरू करूं, बट नेक्स्ट क्लास विल डेफिनेटली डायरेक्टली जंप इनटू फर्स्ट श्लोक. हर बार लिखती हूँ मैं, हो नहीं पाता, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रेगुलर एंड पेशेंटली लिसनिंग. आई एम ट्राइंग कि हम जल्दी जल्दी कोर लर्निंग्स पे जाएं, बट लर्निंग्स इतनी ब्यूटीफुल हैं कि मिस नहीं कर सकते. एंड दिस इज ऑल, इसको बोलते हैं कि अवेयरनेस सेट करना. जिस जिस ओके, आई विल से दैट. यू वांट टू से कम? My son is saying say hasta la vista. I don't know what is this. This is some other language saying goodbye, see you again. I'll say okay, मैं बोल दूंगी. So anyways, जो कोर लर्निंग्स है ना वो इतनी इंटेंस है कि अगर हम हमारा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा सेट नहीं करेंगे तो शायद वो ऊपर से एरोप्लेन की तरह उड़ेगा. और ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी. फिर मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने डिसाइड किया कि सिर्फ भूमिका जो इंट्रोडक्शन है ना उसको हमने 1 महीने तक कवर किया था. तो जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं, मतलब नीचे वाली सीढ़ी से एटलीस्ट चौथी सीढ़ी पे आ जाते हैं, तब हम जो है लिफ्ट में बैठ पाएंगे. भगवत गीता इज अ लिफ्ट विच डायरेक्टली टेक्स यू बहुत हाई लेवल पे. तो सीढ़ियां नहीं लेनी पड़ेंगी, बट हाँ पैदल चल के चौथी सीढ़ी तक जाना पड़ेगा. सो वी आर डूइंग दिस बैकग्राउंड वर्क एंड नाउ वी विल एंटर द लिफ्ट वेरी सून. और कोई इनपुट्स, आपके कोई ब्रेक थ्रूज, कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी हो इस सेशन में? You have very in-depth knowledge. नहीं You have very in-depth knowledge. I mean, vast subject knowledge, and you are immediately like linking the shlokas and with the practical situation and explaining it so very well. आप जब नेक्स्ट टाइम आप जब शुरू करेंगे तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम भी अपनी गीता जो है साथ में रखेंगे, so that we also know कि हम आप कौन से चैप्टर से शुरू कर रही हैं, so that you know we also read along that. So that would be, we will understand कि how much are we progressing. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ठीक है, बट अभी कोशिश करिए, अगर आप लोग मतलब इसको कंटिन्यू करके सीरियसली देखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि पेन, आप एक डायरी मेंटेन कर लो, बिकॉज यू विल वांट टू रेफर टू दिस इंफॉर्मेशन लेटर, और तब आपको ना बहुत इरिटेशन होएगा कि क्यों नहीं नोट किया मैंने वो टाइम पे, क्लासेस वर गोइंग ऑन एंड आई वांटेड टू नोट, क्योंकि यू वुड वांट टू रेफर इट लाइफ लॉन्ग, राइट? तो दैट आल्सो यू यार ट्राई. हम तो आपको सुनते रहते हैं, अब नोट करें आपको सुनने तो इससे क्या डिसाइड करें. It's better that we keep our senses and our ears open. That is true. So that's what I'm saying कि आप हमें बुक बता दो, गीता का चैप्टर आप कौन सा शुरू कर रही हैं, तो हम उसको वहां से पढ़ते भी रहेंगे साथ साथ कि yes, this is being started off with. मैं ना फोटो भेज दूंगी जो बुक मैं रेफर कर रही हूँ,
मैं जो रेफर कर रही हूँ, जो मैंने कोर्स किया है, वो प्रभुपाद का लिखा हुआ बुक है, और उसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज। उसमें कोई भी अपनी साइड से, जनरली क्या होता है ना, जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ अपनी साइड से इंटरप्रेट किया है। भगवत गीता टॉक्स डिफरेंटली टू एवरीबडी। माय सन हैज गॉट द बुक आल्सो। हाँ हाँ, ये हमारे पास भी, आई ऑल्सो हैव द सेम। है ना। मैं फिर भी, अगर आप बाकियों के लिए मैं रेफर कर दूंगी। इसमें लिखा है श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इस बुक की खासियत यह है कि ये यथारूप है। भगवत गीता यथारूप मतलब इट इज नॉट विद इंडिविजुअल परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। आप बाकी की भगवत गीता पढ़ोगे ना, हर किसी ने अपना ही भगवत गीता में कर्म के फल की इच्छा नहीं करो, दिस इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट लर्निंग। बट ऐसा तो है ही नहीं। भगवान तो बोल रहे हैं कर्म करो, मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म नहीं करूंगा तो तुमको कौन पालेगा। तो ही इज ऑलवेज सेइंग यू हैव टू वर्क। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस इंटरप्रिटेशंस आर कमिंग कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ही सेज फल की इच्छा करो, लेकिन कर्म पूरा होने के बाद उससे डिटैच हो जाओ। नाउ डोंट गेट अटैच टू इट बिकॉज दिस विल गिव यू सफरिंग। अब जब कोई एग्जाम देने जाएगा तो वो मार्क्स की इच्छा करेगा ना। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सोचूं कि नहीं मेरे को तो मार्क्स नहीं चाहिए लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। बट आफ्टर गिविंग यू 100% गेट डिटैच टू इट बिकॉज ही डोंट वांट अस टू सफर। तो ये सब चीजें इस बुक में यथारूप है, मतलब एज इट इज। इसमें इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगी ये चीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में एक चीज बहुत अच्छी होती है कि मैं ज्यादा ऐसे गोल गोल नहीं घूमती। मैं डायरेक्टली जो है, सबसे जो बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है वो मुझे मिल जाता है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये कोर्स किया बिकॉज दिस इज द बेस्ट। एंड आई एम अगेन ग्लैड कि मैं आप लोगों को ये बता पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा फॉर ज्वाइनिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और बाकी लोगों को थैंक ऐड यू। करें सो दैट आई हैव मोर एनकरेजमेंट। Bye, थैंक यू। beta. Take care. Have a good day. Yeah, I will do that. या थैंक यू। थैंक्स नमन, थैंक्स अमित।